માનવ અધિકાર સંસ્થાના અધ્યક્ષ છે અને લોકરક્ષક ન્યૂઝના પણ એવો એક એડિટર છે નવસારી અને લોકરક્ષક હેલ્થ કેર ઇન્ડિયાના પણ સીએમડી છે. આ આજે આપણે શાળામાં એટલા માટે વધાર્યા છે કે એક અજ્ઞાત શક્તિ જે છે એના વિશે જો આપણને માહિતગાર કરવાના છે. એ પદ્ધતિ રેકી નામ સાંભળ્યું હશે. એના વિશે ખૂબ જ એક માહિતી આપશે આપણને. હું સીધો જ ડૉક્ટર મિશ્રા સાહેબને કહું કે મારા સ્ટાફને માહિતી આપો. ધન્યવાદ સર. અહીંયા હું બીજી વાર એક સેમિનાર લઉં છું. પહેલા ખબર હશે કે હું કોરોના વખતે આવેલો. સૌથી પહેલા આપ સૌને હું દિલથી અભિવાદન કરું છું. આપ સૌએ પોતાના ટાઈમ કાઢીને આ શાળાના સમયે અમને સાંભળવા આવ્યા. હું પહેલા શરૂઆત કરું કે હું આજે જે આપ સૌને બતાવવા માંગુ છું એનું નામ કહેવાય બ્રહ્માંડ શક્તિ, યુનિવર્સલ એનર્જી રેકી શક્તિ. એ આપણા યથર્વેદમાં એનો ઉલ્લેખ છે, જેને અસ્પર્શ ચિકિત્સા કહેવાતું. પહેલા જાપાનના એક ડોક્ટર મિકાઓ ઉસુઈ આપણા ભારતમાં આવીને શીખીને ત્યાં બહુ શોધ કરી, પછી એનું નામ રાખ્યું રેકી. આજે કોઈ એક દવા એવી છે કે અમુક ટાઈમ લીધા પછી આપણને દવા લેવાની જરૂર નથી. જેમ તમે જોયું કે હમણાં આ ફ્લાવર શો ચાલે છે, આપણા વિશ્વ રેકોર્ડ તો બનાવ્યા પણ પાણી પીવા માટે નથી. આપણે કોઈને વિરોધ કરવા નથી આવ્યા, પણ જે એક્ચ્યુઅલ પોઝિશન છે તેની હાલત આપણા સૌની બહુ ગંભીર છે. તમારા સ્કૂલમાં જો શૌચાલય મોદી સરકાર બનાવે છે, પણ આપણા સ્કૂલના કેમ્પસમાં બનાવે તો લોકો આવીને પરેશાન કરે છે. તો જો ખરી હકીકત છે એ બહુ નાજુક છે. તો મેડિકલમાં અમે સૌના પહેલા શરૂઆત કરી કે ભાઈ અમે કોરોના વખતે ફક્ત ટીચરોને પહેલા પસંદ કર્યો, કેમ કે આપ સૌ દેશના ભવિષ્યના ઘડવૈયા કહેવાય. આ વસ્તુ એવી છે કે દરેક માણસને શક્તિ જે છે અંદર ભીતર છે, આપણને એનું ખબર નથી. હવે આજે હું સૌને થોડાક પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીશ, થોડાક ડેમો. તો પ્રેક્ટિકલ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એના ઉપયોગ તો આપણે કરતા જ છે. દાખલા તરીકે કોઈને કંઈ વાગ્યો હોય, જતા હોય, કંઈ પગમાં વાગે, માથામાં વાગે, તો પહેલાં આપણે શું કરીએ? હાથથી દબાવી દઈએ ને. ત્યાં કંઈ વ્યવસ્થા નહીં હોય તો આપણે શું કરીએ? હાથથી પકડીને માથું દબાવીએ અથવા પગ પકડીએ. પછી રાહત થાય છે કે નહીં? રાહત થાય છે એમાં. એટલે હાથમાં કંઈક શક્તિ તો છે. હવે આજે તમે જોયું હશે કોઈ પણ વસ્તુ, હું આજે રેકી અને માઇન્ડ પાવર બેઉ બતાવીશ. માઇન્ડ પાવર એટલે શું? આપણે અહીંયાથી ચંદ્રયાન મોકલેલા ને ચંદ્રયાન, તો ધરતી ફરતી છે 24 કલાક ને જે આપણો યાન છે તે ફરતો ફરતો જ ગયો, એ સીધું નથી ગયો, અને ચંદ્રમા પણ ફરતો છે. પણ આપણા પાસે એક રિસર્ચ રિપોર્ટ છે કે જેના આધારે આપણે કહી શકીએ કે આટલા મહિનામાં, એટલા કલાકમાં, એટલા દિવસમાં આ ચંદ્રયાન ત્યાં પહોંચશે. રિસર્ચ રિપોર્ટ નહીં હોય. અરે રિસર્ચ રિપોર્ટમાં બી આપણો ધરતી ફિક્સ સમય છે એનું, આટલા ગતિ જ ફરે છે. ચંદ્રમાની ગતિ બી આપણી પાસે છે, અને જે આપણે યાન મોકલ્યા સ્પેસમાં તો એની બી આપણી પાસે ખબર છે. એટલે રિસર્ચ રિપોર્ટના આધારે તો આખી દુનિયા જે છે, આખી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ એક સમયબદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, એક નિશ્ચિત સીમામાં ચાલે છે. એ વાત તો ખરી છે. ચાલો આપણે કોઈ ડોક્ટર પાસે જઈએ તો ડોક્ટર કોઈ પણ ડિસીઝને ડાયગ્નોસ કેમ કરે છે? એની પાસે એક પરફેક્ટ બોડી રિસર્ચ રિપોર્ટ છે. પરફેક્ટ બોડી હોય તો એના માટે બીપી કેટલા હોવા જોઈએ? દરેક શરીરના આપણા જેટલા અંગો છે, દરેક અંગોના એક રિસર્ચ રિપોર્ટ છે. તો જ આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ એને બીપી તો ભાઈ 120/80 હોવા જોઈએ, તો બધાને ફિક્સ જ છે. જો કદાચ એવું હોતે કે ભાઈ કોઈને 500 હોય, કોઈને 300 હોય, તો કોઈ ડોક્ટર ડાયગ્નોસ કરી શકે ખરો? તો દરેક બોડી જે છે ને, આ જે વસ્તુ બતાવું છું કુદરત સાથે
તમારા કોઈ ધર્મ જાતિ પાતિ હાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ડોક્ટર એવું નથી ને ભાઈ કે બ્રાહ્મણ આવ્યો તો એનો કોઈ ડાયગ્નોસિસ અલગ તરીકે થાય, કે ભાઈ મુસલમાન આવ્યો તો ભાઈ એનો રિપોર્ટ અલગ તરીકે થાય. એટલે બધું એક પરફેક્ટ સિસ્ટમ છે. તો એક સિસ્ટમ આધારિત આખી દુનિયા ચાલી રહી છે. આ બધા પંખા ચાલે છે, આ ચાલવા માટે એને એનર્જીની જરૂર ખરી કે નહીં? પર એનર્જી કઈ છે એમાં? પાવર. સાધન દેખાય છે પણ એનર્જી દેખાતી નથી. ચાલો હવે તમે બધાને સવાલ પૂછું. બ્રેન અને માઇન્ડ, દિમાગ અને મન. તો બ્રેન ને મન ચલાવે, માઇન્ડ ચલાવે છે કે માઇન્ડ ને બ્રેન ચલાવે છે? કોણ બતાવશે? અહીં માઇન્ડ ચલાવે છે. માઇન્ડ છે એ કોઈ શરીરના કોઈ પાર્ટ નથી. મન, માઇન્ડ છે એ બ્રેનને ચલાવે છે. પણ બ્રેન આપણો એક દેખાય છે પણ માઇન્ડ દેખાતો નથી. એ આપણા શરીરના કોઈ પાર્ટ નથી. તો જે ચલાવે છે એનો એનર્જી કોણ આપે છે? મન. તો જ્યારે આખી દુનિયામાં દરેકના રિસર્ચ રિપોર્ટ છે, એક વિધિવત ચાલે છે, તો આપણા અને માઇન્ડ કઈ રીતે ચાલે? એના થોટ આવે, એક વિચાર, વિચારોના સમૂહને મન કહેવાય. સાચી વાત છે. તે વિચારો આવે ક્યાંથી આવે છે? કોઈને ખબર છે એમાં વિચાર ક્યાંથી આવે? સારા વિચારો બી આવે છે, ખોટા વિચારો બી આવે છે. તમે બધા શિક્ષક છો, બોલો. હા બેન, મગજમાં તો વિચાર જાય છે માઇન્ડ થ્રુ, પણ માઇન્ડમાં વિચાર ક્યાંથી આવે? મનમાં આપણે વિચારો ક્યાંથી આવે? બ્રહ્માંડમાંથી વિચારો આવે છે. એ બ્રહ્માંડનો આપણે એક હિસ્સો છે. ચાલો એક સવાલ તમને પૂછું, સાહેબ. કોઈ ગાળ આપી ચાર, તમને ગુસ્સો લાગે કે નહીં? સ્વાભાવિક છે. કોઈ બી આપણે ચાર ગાળ હમણાં આપી દઈએ તો ગુસ્સામાં આવી જાઓ કે નહીં? કોઈ બી આવી જાય. અચ્છા, કોઈ તમને વખાણ કરી હોય તો ખુશ થાય કે નહીં? આપણે કોઈને વખાણ કરીએ, બેન તમે બહુ વખાણ કરે કે બેન બહુ સારા છે, તો ખુશ થાવ કે નહીં? એના મતલબ શું થયું? કે તમારા ગુસ્સા કરવા અને તમને ખુશ કરવાની ચાવી કોની પાસે છે? સામેવાળા પાસે છે. તો એ ચાવી સામેવાળા પાસે હોવું જોઈએ કે આપણી પાસે હોવું જોઈએ? પણ છે કોઈ પાસે ચાવી? તો આજે એ જ વસ્તુ હું શીખવવા માટે આવ્યો છે કે ચાવી આપણી પાસે કેમ રાખવી. એનું નામ છે માઇન્ડ પાવર. તો દરેક માણસને હાથમાં એ શક્તિ છે. એ શક્તિના ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ? તો એકવાર તમે શાંતિથી જરાક રિલેક્સ બેસી જાઓ અને મોબાઈલ જરા 10-15 મિનિટ બંધ કરશો તો બહુ સારું. तरफ देखें, इस हाथ, दोनों हाथ के बीच में थोड़ी दूर लंबा करें, 1 फुट लंबा करें, 12 इंच, फिर थोड़ा थोड़ा 13, 14, 15, 16, वापस फिर 15 पर लाएं, धीमे धीमे 14, 13, 12, फिर धीमे 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 डिस्टेंस को बढ़ाएं, 15, 16. आप सबके हाथ के बीच में एक मैग्नेटिक पावर, एक गुब्बारे जैसी शक्ति आप दोनों के हाथ में आ रही है. धीमे धीमे कम करें और फिर धीमे 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 बढ़ाएं, धीमे धीमे डिस्टेंस दूर करें. देखो आपका हाथ कहां तक खुलता है, आप खोलते जाएं. 17, 18, 19, 20. धीमे धीमे जैसे आपका हाथ में डिस्टेंस बढ़ेगा पूरा हाथ खुलता जाएगा. वापस 24, 25, 26, 27 तक ले जाएं. वापस फिर धीमे 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 कम करें. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. धीमे धीमे फिर वापस 12 लाएं, फिर वापस लंबा करें थोड़ा. धीमे धीमे आप सबके हाथों में एक दिव्य शक्ति, एक व्हाइट लाइट, एक दिव्य शक्ति का एक मैग्नेटिक पावर आप सबके हाथ में महसूस हो रहा है. जब हाथ आप अंदर की तरफ दबाते हैं तो थोड़ा ताकत लगती है. जैसे जैसे आप बाहर करते हैं, हाथों के बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ाते हैं,
वैसे वैसे आपके अंदर हाथ एकदम खुलता हुआ अच्छा लगता है। सबके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आप सबके अंदर आ गया है। वापस दोनों हाथ जोड़ करके घिसे और अपने चेहरे पर लगा दें। अच्छा, किसको किसको लग रहा था इसके अंदर बीच में कुछ आया है? आपको लग रहा था बहन? सबको लग रहा था ना? वो शक्ति है, नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं है। हर इंसान के हाथ में वो दिव्य शक्ति है। अच्छा, आप लोगों ने ओरा के बारे में सुना है? आभा मंडल, ओरा। तो जैसे जैसे हमारा ओरा बढ़ता है वैसे वैसे हम बीमारियों से भी दूर होते हैं। बोलते हैं भगवान महावीर का 1 किलोमीटर ओरा था जो अभी तक किसी का हुआ नहीं है। ऐसे कम से कम 9-10 फुट तो शिक्षकों का ओरा होना चाहिए। अभी मैं कई बार महात्माओं से मिलता हूं तो ओरा आपका बताता है कि नीति नियत और आपके कर्म कैसे हैं। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करोगे आपका ओरा बढ़ता जाएगा। अगर ओरा 2 फुट से नीचे आ जाए तो समझ लेना 2-3 दिन में आदमी खत्म होने वाला है। जिसका ओरा बिल्कुल कम हो जाता है वो मृत्यु के नजदीक आ जाता है। अच्छा, ओरा जो है वो चक्रों से मिलकर बनता है। चक्रों के बारे में आप लोगों ने सुना है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। नीचे सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसके बाद यहां मूलाधार चक्र है दोनों के बीच में। इसके ऊपर आता है स्वादिष्ठास्त्र, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र आता है, फिर विशुद्धि चक्र, फिर ये आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार चक्र। अभी हम आपको दूसरा बताएंगे। अच्छा, आप सबको पता चल गया शक्ति है। अब उस शक्ति का उपयोग हाथों से हम कैसे करेंगे, अब हम दूसरा शुरू करते हैं। ये तो आपको बताया कि भाई रेकी, ये जो आता है मैग्नेटिक जो पावर है, इसी का नाम रेकी है। इसका उपयोग हम अपने शरीर में कैसे करें। आपके शरीर में कोई बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, आपके घर में कोई समस्या चल रही हो, आपके रिश्तों में कोई परेशानी हो, भाई हमारे रिश्ते कैसे होंगे? और रिश्तों भी आप सुधार सकते हो। जीवन की हर समस्या का समाधान ब्रह्मांड की शक्ति में है। अब इस शक्ति का उपयोग हम कैसे करेंगे, हम आज अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने 7 चक्रों को हम हील करेंगे। तो आप सब तैयार हो? देखो ये लंबा टाइम है लेकिन हम एकदम 1-2 मिनट खाली करेंगे क्योंकि अभी मुश्किल से 1 घंटे का टाइम मिला है और 1 घंटे में आधा घंटा तो हो गया बैठते बैठते। तो 15-20 मिनट हम इसका उपयोग करेंगे और अभी सबके अंदर में वो ऊर्जा शक्ति आएगी। उस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे वो हम आज करेंगे। वो सब लोग आप सुबह शाम करोगे और जो उसके आगे सीखना चाहे वो हमारे पास सीख सकता है, बराबर? तो शुरू करें। तो वापस क्या करेंगे, अभी हम पहली बार 5 संकल्प करेंगे। मैं बोलूंगा और आप लोग अपने मन में बोलेंगे, मुंह से बोल सकते हैं, बराबर? देखो उसमें पहला संकल्प हम बोलते हैं कि आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। तो ये प्रतिज्ञा लेने में कोई तकलीफ है क्या? खुश रहने में कोई तकलीफ तो है नहीं। आज मैं सबको माफ कर दूंगा। तो एक दिन अगर माफ नहीं कर दोगे तो कौन सी गोलीबार करने वाले थे? तो आज के दिन सबको माफ कर दो। आपको कुदरत तब माफ करेगा जब पहले आप दूसरे को माफ करोगे। तो माफ करने का बीज पहले हमें अपने अंदर बोना पड़ेगा। आज हम सब दिन भर अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो ईमानदारी से करने के लिए क्या तकलीफ है? सब लोग बोलते ईमानदारी से काम कर रहे हो ना आप लोग। यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं तो जो ईमानदारी आप ना कर पाओ। ईमानदारी ईमानदारी है। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, जिनको भी आप मानते हैं, देवी देवताओं को, सबको दिल से आप नमस्कार करें और ऐसा आप सोचें कि आपके माता पिता का चरण स्पर्श आप कर रहे हैं। जिस देवी देवता को मानते हैं आप सब दिल से मन में ही एक भाव व्यक्त करें कि आपके दिव्य शक्तियां जो भी, जिनको भी आप मानते हो, उनका दिल से चरण स्पर्श करें। आज दिन भर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये प्रार्थना करके पहले आप ये दिव्य शक्ति का पावर से आपके आंख हील हो रहे हैं, आंखों में रोशनी बढ़ रही है।
आपके हाथों से आपके आंख, आपके चेहरे सब हील हो रहे हैं। ऐसा फील करें कि आपके हाथों से हीलिंग पावर आपके चेहरे से, आपके आज्ञा चक्र भी हील हो रहा है। इसी के माध्यम से पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति का प्रवाह सिर से लेकर पैर तक बह रहा है। साथ में लंबी गहरी सांस लें। भीतर से श्वास की शक्ति और ऊपर से रेकी शक्ति दोनों मिलकर आपके शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपने कान के ऊपर कनपट्टी पर रखें। आपका लेफ्ट और राइट माइंड हील हो रहा है। सभी नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट सब खत्म हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ रही है। आपका लेफ्ट और राइट माइंड हील हो रहा है। पूरा सिर आपका हीलिंग पावर से भर रहा है। लेफ्ट और राइट माइंड आज बैलेंस हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी, रेकी शक्ति आप सबके शरीर में प्रवेश कर रही है। लंबी गहरी सांस लें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। फिर गहरी सांस लें, जोर से ओम को बोलें और लंबा ओम बोलें। आपका दिमाग पूरा हील हो जाएगा। वापस लंबी गहरी सांस लें। अब दोनों हाथों को, एक हाथ अपने आगे आज्ञा चक्र पर और दूसरा पीछे, दोनों हाथों को रखें। इससे आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों एक साथ हील होंगे। मन में होता तमाम नेगेटिव विचार આ પ્રયોગથી, આ શક્તિથી આપણા જીવનમાંથી નીકળી જશે। आपका आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। અહીંયા હીલ કરવાથી મગજની કોઈ પણ બીમારી દૂર થાય છે।
एक बार ओम बोलेंगे, लंबी गहरी श्वास लें। ओ अब दोनों हाथों को अपने गले पर रखें, सीधा अपने गले पर रखें। आप सीधा भी रख सकते हैं और क्रॉस भी रख सकते हैं। ये विशुद्धि चक्र है। यहां हील करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हार्मोन का कोई भी प्रॉब्लम हो, थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम हो, यहां हील करने से बीमारी धीमे धीमे खत्म हो जाती है। हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाए तो हम जो भी बात करेंगे सामने वाला उससे प्रभावित होता है। सबके गले में दिव्य शक्ति का प्रवाह हो रहा है। विशुद्धि चक्र आप सबका हील हो रहा है। आप दोनों हाथों को अपने कॉलर बोन के नीचे रखें, हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर हील करने से हृदय संबंधी सभी बीमारियां खत्म होती हैं। हमें आपस में प्रेम, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे जीवन के लिए हृदय चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। सांस लेने की कोई भी तकलीफ हो, इसी से हमारा लंग्स भी ठीक होता है। एक बार लंबी गहरी सांस लें और ओम बोलिए। अब इसके नीचे मणिपुर आता है, जहां से वहीं से शुरू करें। एक हाथ और एक हाथ उसके नीचे रखें। ये मणिपुर चक्र है। यहीं से पूरा शरीर हमारा चार्ज होता है। इसको चार्ज पॉइंट भी बोलते हैं। हमारी किडनी से संबंधित सभी बीमारियां, डायबिटीज वगैरह सब इसी चक्र से, पैंक्रियास इसी से एक्टिव होता है। अपने मन में भाव दें, आपके हाथों से एक ऊर्जा शक्ति आपके मणिपुर चक्र को चार्ज कर रही है। प्रतिदिन हर इंसान को इसे चार्ज करना चाहिए। एक बार लंबी गहरी सांस लें और ओम बोलेंगे। अब इसके नीचे एक नाभि पर और इसको नीचे हाथ रखेंगे। नाभि चक्र भी इसे कहते हैं, स्वादिष्ट चक्र भी कहते हैं। पेट की सभी बीमारियां इस चक्र से प्रभावित होती हैं। इसे चार्ज करने से पेट संबंधी सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लंबी गहरी सांस लें
और ओम बोलेंगे। अब हम दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे। हाथ में कोई तकलीफ हो, कवरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी तकलीफ हो, यहां दोनों हाथ रखने से आपके हाथों का दर्द भी खत्म होगा। जितनी देर आप हाथ ऐसा रखे, ये दर्द सब अभी यहां से खत्म हो जाएगा। हर पॉइंट पे कम से कम 3 से 5 मिनट प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिए। दोनों हाथों को अपने पीछे पीठ के बीच में रख दें। कमर दर्द की तकलीफ यहां ज्यादा होती है। दोनों हाथों को कमर के बीच में रखें। यहां से हमारी किडनी जो हमें जीवन देती है, हमारे शरीर की पूरी गंदगी किडनी साफ करती है। एक बार ओम बोलेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे कमर के पीछे वी के शेप में रखें। ये आपका मूलाधार चक्र आगे और पीछे भी हो, जहां हड्डी खत्म होती है वहीं हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र, इसे सूर्य केंद्र भी कहते हैं। कुंडली जागृत यहीं से होती है। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, दुनिया में उसे कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं होती। पद प्रतिष्ठा आपके सामने आकर झुकती है। लंबी गहरी सांस लें और ओम बोलें। ये 7 चक्रों में हमारा आखिरी चक्र और पहला आधार है। अब अपने दोनों हाथों से रेकी शक्ति से आह्वान करें कि हमारे शरीर में हीलिंग करने के लिए वहां उसे स्थापित करें। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। 3 बार थपकी दें और प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं। मन ही मन उस ब्रह्मांड शक्ति का आभार व्यक्त करें। उन दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करें और सब अपने आप का भी आभार व्यक्त करें कि आज आप सबको अपने भीतर जाने का मौका मिला। सदियों सदियों से हम बाहर भटक रहे थे। आप सब अपने शरीर में देवता के स्वरूप में हो। सबका दिल से आभार व्यक्त करें और अपने चेहरे पर हाथ रखा। आप सबकी शरीर शांत हो रही है। 10 लंबी गहरी सांस लें। हर सांस के साथ आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति के साथ एक शांति का अनुभव हो रहा है। आपके शरीर, आंखें भारी हो रही हैं। आपके शरीर में आंखें भारी हो रही हैं। 9 लंबी गहरी सांस लें। आपके सिर के अंगों में देखें भीतर। सिर की हलचल धीमे धीमे कम हो रही है। एकदम शांति का अनुभव कर रहे हैं। पूरी शरीर शांत हो गई है। हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा आप सोचो कि वहां हो। आप सब एक बगीचे में बैठे हो और आपके घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप ऐसा अनुभव करें कि आपके घुटने तक पानी भरा हुआ है। शरीर की जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है सब पानी के अंदर उतर रही है। पूरी नेगेटिव एनर्जी सब पूरा शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं वो सब पानी में उतर रही है। धीमे धीमे पानी का रंग काला हो रहा है। सब बीमारियां वहां डिजोल्व हो रही हैं। मन रंग काला हो गया है। सब कोई आंख खोल दे। आंख खोल के अपने हाथ को घसीए और अपने चेहरे को लगाइए। तो इसको जो आगे सीखना चाहे वो हमारे पास सीख सकता है। हमारी फीस वही होगी जब आप खुद अच्छे हो और दूसरे को अच्छा करोगे। इसलिए
1 2 3 4 5 6। आप श्वास को होल्ड कर दें, फिर धीमे धीमे 6 तक गिनते गिनते श्वास को बाहर निकालें, और जब श्वास बाहर निकाल दें तो उसको फिर वापस पुनः होल्ड कर दें। हर श्वास के साथ आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का प्रभाव, श्वास को हम प्राण शक्ति बोलते हैं। श्वास से ही हमारा जीवन शुरू और श्वास से ही खत्म होता है। हर श्वास के साथ आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति, एक ब्रह्मांड एनर्जी शरीर में प्रवेश करेगी। आप सब लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ आपके शरीर में एक प्राण शक्ति, एक दिव्य शक्ति, एक ब्रह्मांड की शक्ति आप सबके शरीर में प्रवेश कर रही है। हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा आप सोचो कि ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप सोच लो, जो इमेजिंग करो कि आपके शरीर में एक शक्ति अंदर जा रही है। एक से लेकर 6 तक गिनती करें और फिर श्वास को रोक करके उस ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर में एक पावर की तरह, एक दिव्य प्रकाश की तरह, एक व्हाइट लाइट की तरह सोचे कि वो व्हाइट लाइट जो है आपके शरीर में एक शक्ति के रूप में काम कर रही है। थोड़ी देर में आप सबके शरीर में एक एनर्जी महसूस होगी। ગાંધી છે આ ધ્યાનથી એક મનને બહુ શાંત થઈ ગયું હોય લાગે, અને જ્યારે તમે કાઉન્ટિંગ કરો હોય ત્યારે કંઈક અલગ જ અનુભવ થતો હોય એવું લાગતું છે કે આપણે બહુ ટેન્શનમાં હોઈએ ને ત્યાર પછી એકદમ શાંત થઈ જાય, ઘણી વખત માઇન્ડને બહુ સારું લાગે. મારું નામ તુલસી ટંડેલ છે. આ ટ્રેનિંગ કર્યા પછી મગજ શાંત થઈ જાય છે, સારું લાગે છે, પણ કન્ટિન્યુટી હોવી જોઈએ તો વધારે ફાયદો. हाँ, तो कंटिन्यूटी करो। हाँ, तो बहुत सारू। મારું નામ વિષ્ણુ પટેલ. આજે તમે જે પ્રયોગ કર્યો બતાવ્યો છે, મને ખરેખર ખૂબ મન શાંત થઈ ગયું. શરીરમાં એકદમ હળવાશ, રોગ વગરનું શરીર છે ખ્યાલ આવી જાય છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તો શ્રી હરિ જુજવે રૂપે અનંત વાસે, એક દિવ્ય શક્તિ જે છે આપણે બધાને ધારણ કરી રહી છે એનો અનુભવ આ પ્રયોગ દ્વારા આપણે સતત આપણે પ્રયોગ કરતા રહીએ તો અનુભવ થઈ જ જાય છે. ખરેખર મન શાંત થઈ જાય છે અને એક અલૌકિક શાંતિ એનો ખરેખર અનુભવ થાય છે. ડૉક્ટર મિશ્રા સાહેબે આજે આપણી શાળામાં આવીને પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવીને જે દિવ્ય શક્તિ છે જે વિશ્વ બ્રહ્માંડમાં પડેલી છે એને આપણા શરીરમાં કેવી રીતે અનુભવાય તેનું નિદર્શન કરાવ્યું છે. એનો લાભ આપણને જરૂર મળશે અને આપણા દૈનિક જીવનમાં પણ ઘરે પણ સમય મળે ત્યારે આમાંનો કોઈક અંશ આપણે એને ફોલો કરીશું તો જરૂર આપણા અંગત આપણા શરીરને ફાયદાકારક નીવડશે એવું જરૂર માનું છું. અને ફરીથી ડૉક્ટર મિશ્રા સાહેબનો આભાર માનું છું. હવે આ શબ્દો સાથે આપણે આ સભા સમાપ્ત કરીએ. આપ સૌને હું દિલથી આભાર માનું છું કે આપ સૌ ભેગા થઈને આ પ્રયોગને બહુ શાંતિ અને દિલથી કર્યા. અને હું હવે એવું ઈચ્છું કે દરરોજ આપ સૌ આ વિધિના આપણા ઘર માટે, પરિવાર માટે, સ્વાસ્થ્ય માટે, શરીર માટે, આપણા જીવન માટે અને આપણા સ્કૂલ દરરોજ માં એમાં પ્રગતિ પર આવે એવી દિલથી હૃદયપૂર્વક સૌના આભાર સાથે હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. ધન્યવાદ.